بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے تمام بچے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر عمرانہ ناصر آپ کو KMS کے مواصلاتی سلسلہ تدریس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں تمام بچے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس تدریسی پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج 21 جولائی 2020 اور منگل کا دن ہے اور آج ہم اپنی اردو کی کتاب کاروان اردو کا سبق اچھی باتیں پڑھیں گے۔ لیکن یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے اسباق کا مختصر سا اعادہ کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں۔ چلیے بیٹا، مجھے اس سوال کا جواب بتائیے، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے؟ شاباش، اس سوال کا جواب تو بہت سے بچوں کو معلوم ہے۔ چلیے بیٹا آپ بتائیے۔ جی، نماز پڑھنے سے، شاباش۔ صاف ستھرے رہنے سے، جی۔ دوسروں کی مدد کرنے سے، ویری گڈ۔ سچ بولنے سے، شاباش۔ اور اپنا کام خود کرنے سے، ویری گڈ، جی جی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے سے، بہت خوب۔ بچوں، آپ کو تو وہ سب باتیں بہت اچھے سے معلوم ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان باتوں کے متعلق آپ نے کس سبق میں پڑھا؟ جی بیٹا، نظم حمد میں پڑھا، شاباش۔ اور پیارے نبی کی باتوں میں پڑھا، شاباش۔ اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھا، واہ بھائی، آپ بچے تو بہت سی اچھی باتیں جانتے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بہت سے بچے ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہوں گے، کرتے ہیں۔ تو چلیے ایسا کیجیے کہ آج تمام بچے خوب اچھی طرح سوچ کر اپنی کوئی سی 3 اچھی باتیں مجھے بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ اچھی باتیں کہاں سے سیکھی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ان دونوں سوالات کے جوابات تمام بچوں نے واٹس ایپ گروپ میں اپنی آواز میں اپنی ٹیچر کو بھیجنے ہیں اور پھر میں دیکھوں گی کہ میرے بچوں میں کون کون سی اچھی باتیں ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کے مقاصد کو دیکھیں گے، یعنی یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کیا چیز سیکھیں گے۔ اس سبق کے آخر میں طلبہ چند اچھی عادات کا علم حاصل کر کے روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کرنا سیکھ جائیں گے اور یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کی جن صلاحیتوں میں بہتری آئے گی وہ ہے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، تجزیہ کرنے اور عمل کرنے کی صلاحیت۔ اور اس سبق کی تدریس میں ہم جن ذرائع سے استفادہ کریں گے وہ ہے آپ کی اردو کی کتاب، ویڈیو لیکچر اور واٹس ایپ گروپ۔ چلیے بچوں، تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 26 کھولیے اور بہت توجہ سے آپ نے اس سبق کی پڑھائی کو سننا ہے اور جو مشکل لفظ بیٹا آپ کو محسوس ہو اس کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے۔ جب ہماری پڑھائی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے ان تمام الفاظ کی مشق کرنی ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو ان کا تلفظ بھی سمجھ میں آ جائے اور ان کی املا بھی آپ سیکھ جائیں۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کی رات دادی جان بچوں کو کوئی اچھی سی کہانی ضرور سناتی تھی۔ آج بھی فاطمہ، حسن اور عائشہ دادی جان سے کہانی سنانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ دادی جان نے کہا، آج ایسا کرتے ہیں کہ آپ تینوں اپنی کوئی 3 اچھی باتیں بتائیے جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ یہ سن کر بچے خوش ہو گئے۔ سب سے پہلے عائشہ نے کہا، دادی جان میں بتاتی ہوں۔ میں صبح اٹھ کر ہلکی پھلکی ورزش کرتی ہوں۔ صبح ناشتہ اچھی طرح کرتی ہوں تاکہ دل لگا کر پڑھ سکوں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیتی ہوں۔ جی بیٹا، آپ نے یہاں پڑھا ہے ہلکی پھلکی ورزش، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جی ایکسرسائز، شاباش، انگلش میں ایکسرسائز بھی کہتے ہیں اس کو۔ بچوں، صبح سویرے اٹھ کر تازہ ہوا میں سانس لینا، تیز تیز قدم چلنا، صبح کی سیر کرنا، یہ سب چیزیں ہلکی پھلکی ورزش میں آتی ہیں۔ کتنے بچے آپ میں سے جو ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں؟ کوئی بچہ بھی نہیں کرتا۔ چلیے یہ بتائیے
कि आप में से कितने बच्चे हैं जो सुबह के वक्त नाश्ता करके स्कूल में आते हैं? कितने थोड़े से बच्चे, और बाकी बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल में आते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। नाश्ता क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जी, वक्त नहीं होता और भूख नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है बेटा? आपको मालूम है, जब आप रात को बेटा देर से सोते हैं तो सुबह सवेरे आपकी आंख नहीं खुलती है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो आपका सुबह के वक्त नाश्ता करने को दिल नहीं करता, और जब आप बगैर नाश्ते के स्कूल में आते हैं तो क्या होता है, पढ़ाई में भी आपका दिल नहीं लगता। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि आपके जिस्म में ताकत ही नहीं होती है। तो आइंदा से आप सब बच्चों ने क्या करना है, आयशा की बताई हुई इन तीनों बातों पर अमल करना है। सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करनी है, नाश्ता अच्छे तरीके से करना है, और पानी बैठकर और 3 सांसों में पीना है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पानी पीने का ये तरीका बताया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने से क्या होता है, आपने अभी क्या बताया था? जी, अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। अब देखते हैं कि हसन ने क्या बातें बताई। अब हसन बोले, मैं रात को सोने से पहले अपना बिस्तर दुरुस्त करता हूँ और ज़रूरत की सब चीज़ें, मसलन पेंसिल, रबर, पेंसिल तराश और कॉपियाँ वगैरह देख लेता हूँ, ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। नंबर 2, मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। नंबर 3, स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जी बच्चों, आपने यहाँ पेंसिल तराश का लफ्ज पढ़ा है, क्या मानी होता है इसका? जी, शॉर्पनर। बिल्कुल, शॉर्पनर इसलिए क्योंकि इसको पेंसिल तराश इसलिए कहते हैं बेटा, इससे हम अपनी पेंसिल का सिक्का तराशते हैं, ठीक है। और दूसरा लफ्ज आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, पहल करना। क्या मतलब होता है पहल करना? जी, पहले करना। जी, इसका मतलब यही होता है कि कोई काम दूसरे से पहले करना, यानी शुरू करना, किसी काम को शुरू करना। अब सलाम में पहल करने का क्या मतलब होगा, कि दूसरों से पहले, सबसे आगे बढ़कर सलाम करना। और आपको पता है कि सबसे आगे बढ़ के सबसे पहले सलाम में पहल करना ये किसकी आदत थी? शाबाश, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। और उनकी बताई हुई आदत पर अमल करने से क्या होता है? जी, अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। अब हमने यहाँ 2 आदत के बारे में पढ़ा। एक आदत हमने पहले पढ़ी है अपने प्यारे नबी की, कौन सी पढ़ी है? जी, पानी बैठकर और 3 सांसों में पीना। और दूसरी आदत सलाम करने में पहल करना। अब आप सब बच्चों ने क्या करना है आइंदा बेटा? रात को अपना बस्ता दुरुस्त करके सोना है, सलाम में पहल करनी है, और स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से स्कूल का माहौल बहुत अच्छा आता है और पढ़ाई में भी मजा आता है। अब देखते हैं कि फातिमा ने कौन सी अच्छी बातें बताई। फातिमा ने कहा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। दूसरी बात उसने ये बताई, मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ, लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज धोना पड़ता है। जी, और तीसरी बात क्या बताई, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती हूँ। जी बेटा, हाथ बटाने का क्या मतलब होता है? जी, हेल्प करना, यानी अम्मी की मदद करना। आप में से कितने बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल से जाते ही अपना यूनिफॉर्म रोज चेंज करते हैं, और कितने बच्चे हैं जो नहीं करते? जी, ये जो कुछ बच्चे हंस रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि ये अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते हैं। और बेटा आपको पता है ना, अगर अम्मी धो ना सके तो फिर अगले दिन क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म गंदा होता है स्कूल में, तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तो सब बच्चों को घर जाते ही अपना यूनिफॉर्म चेंज करना चाहिए। तो बेटा फातिमा की बातों से हमने क्या सीखा, कि हमेशा सच बोलना है, घर स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करना है, और घर के कामों में अम्मी की मदद करनी है। ठीक है बेटा। दादी जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह। जी बेटा, इंशाअल्लाह का क्या मतलब होता है? अगर अल्लाह ने चाहा। जब भी हम किसी अच्छे काम का इरादा करें तो हम सब बच्चों को क्या कहना चाहिए? इंशाअल्लाह।
क्योंकि इंशाअल्लाह कहने से उस अच्छे काम में अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है और हम आसानी से वो काम कर लेते हैं। तो दादी जान ने क्या किया, सब बच्चों की अच्छी बातें सुनकर उनको दुआ दी। क्या दुआ दी? कि वो हमेशा खुश रहें, उम्र दराजी की दुआ दी। और ये भी कहा कि सब बच्चे अगर अच्छी बातों पर अमल करें तो क्या होता है, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। तो देखते हैं आज की बातों से हमने क्या सीखा। आज का हमने सीखा बेटा कि हम सब बच्चों ने सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश करनी है, अच्छी तरह नाश्ता करना है, पानी बैठकर और 3 सांसों में पीना है, रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करना है, सलाम में पहल करनी है, स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हमेशा सच बोलना है, स्कूल से आते ही अपना लिबास तब्दील करना है और घर के कामों में अम्मी की मदद करनी है। जी बेटा, अब तमाम बच्चे मुझे बताएं कि आइंदा आप सब ने इन तमाम बातों पर क्या करना है, अमल करना है। और इसके लिए क्या कहते हैं, सब बच्चे क्या बोलेंगे? अभी हमने क्या सीखा? इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब बच्चे इन बातों पर अमल करेंगे। जी बच्चों, अब हम अपनी सवालात की तरफ आते हैं। आज के सबक के मशकी सवालात को देखते हैं। बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे? जी, सब बच्चों को मालूम है, कहानी सुनाने की। तो क्या लिखेंगे? बच्चे दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। और दादी जान ने बच्चों से क्या कहा? जी, ये भी सबको पता है। दादी जान ने कहा था सब बच्चे अपनी 3 अच्छी बातें बताएं। दादी जान ने बच्चों से कहा हर बच्चा अपनी 3 अच्छी बातें बताए जिस पर वो अमल करता है। जी, सवाल नंबर 3 है, सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों जरूरी है? हमने क्या पढ़ा था? जो नाश्ता नहीं करते क्या होता है? पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता। तो क्या लिखेंगे इसका जवाब? जी, दिल लगाकर पढ़ने के लिए सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। हसन ने जो बातें बताई इनमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों? हसन ने तो सारी अच्छी बातें बताई, सब बच्चों ने अच्छी अच्छी बातें बताई थी। आपको हसन की कौन सी सबसे अच्छी बात लगी? सलाम करने की। और ये क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ये आदत किसकी थी? हमारे प्यारे नबी की। तो हमें हसन की सलाम में पहल करने की आदत बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत सवाब का काम है। फातिमा की किन बातों से अंदाजा होता है कि वो अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती है? जी बेटा, फातिमा घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती है और स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील कर लेती है ताकि इसकी अम्मी को रोज धोना ना पड़े। तो अब सब बच्चों ने इन बातों पर अमल करना है। तो बेटा अब आपने घर जाकर सब बच्चों ने सबक की दुरुस्त तलफ्फुज़ के साथ पढ़ाई करनी है ताकि कल जब मैं आपसे इस सबक की पढ़ाई सुनूं तो तमाम बच्चों की कोई भी गलती ना हो, ठीक है? और दूसरा काम क्या करना है आपने, जो यहाँ पर खत कशीदा अल्फाज हैं जिनके नीचे आपने लाइन लगाई थी, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने 4 से 5 बार लिखना है, उसकी मशक करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है। और जो सवालात हैं आपके उनके जवाबात आपने खुशखत लिखने भी हैं और जुबानी याद भी करने हैं, ठीक है बेटा? अब देखते हैं कि हमने अपना घर का ये काम करना कैसे है। जी बच्चों, आप लोग हाशिया लगाते हैं ना अपनी कॉपी पर? सबसे पहले आपने हाशिया लगाना है दोनों साइड पर। उसके बाद यहाँ देखें दरमियान में आपने लिखना है घर का काम, नीचे आपने उन्वान लिखना है, सबक का नाम आएगा इसमें, दाएं जानिब आपने तारीख लिखनी है और बाएं जानिब आपने इस्लाही कॉलम बनाना है। अगर आपके काम में कोई गलती हो जाती है तो आपने उसके सामने यहाँ पर लाइन लगाकर उसकी इस्लाह करनी है ताकि आपकी दोबारा से वो गलती ना हो, ठीक है? और सब बच्चों ने अपना नाम भी लिखना है और अपना रोल नंबर भी लिखना है काम पर। उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे से अपना काम समझ आ गया होगा और पूरा सबक भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा और सब बच्चे इन अच्छी बातों पर अमल भी करेंगे, ठीक है बेटा? इसके साथ ही हमारा आज का उर्दू का पीरियड खत्म होता है। उम्मीद है सब बच्चे अपना बहुत अच्छा सा काम करेंगे। अल्लाह हाफिज।